As you all know, SL has completed 20 remarkable years. And to celebrate this journey, we've been talking to industry stalwarts to gain insight from their knowledge, from their expertise. As industry veteran, Ajit has over 2 decades of leadership experience. And believe me, even I have benefited immensely talking to him. An avid reader and an amazing orator, Ajit truly believes that investor behavior is the key to its wealth creation. Thanks, Ajit, for taking time out of a busy schedule, first of all. And it's an honor you are able to speak with our audience here. To take the conversation forward, Ajit, when I started SLA, industry was around a lakh and a half crore. Today, we are at 55 lakh crore. I'm like, where do you see industry going forward? Well, firstly, thanks Ashish for inviting me to speak to your audience. And we both, I think, been part of this industry और साथ में 20-25 साल निकाले हैं इस industry में. So you're right that we would not have imagined when we started our careers that we will see the day when we are now at 55 lakh crore of the industry. My perspective is, और इसमें अगर एक perspective देना है तो ये है कि I look at it as how the industry will be now going forward and how has the industry reached so far. I think has a connection directly to what we call in economics per capita income. तो अगर समझे कि 10 साल पहले भी अगर इंडस्ट्री का अगर नंबर ले ले तो we were about 10 lakh crores. Now we are already 5 times that in 10 years. It has become 55 lakh crore. 10 साल पहले करीब per capita income जो था वो $1,000 गिना जाता था for Indians और अभी RBI का रिपोर्ट अगर लेटेस्ट आप देखो तो $2,300 करीब per capita income इंडियंस की है. तो इसमें मेरा जो व्यू है इज दैट $1,000 के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक रहता अज्यूम मैं करेक्ट नंबर्स नहीं बता रहा, एक assumption ले कि अगर समझो कि $800 का रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा हो रहा है, so it is only $200 that was coming into the Indian economy for consumption, for saving, for investment, सब मिला के 200 था. अब जब $2,300 हुआ है 10 साल के अंदर, ऐसा नहीं है कि आदमी जो 3 वक्त खा रहा है वो 5 वक्त और 6 वक्त खाने लगेगा, वही 3 वक्त के खा रहा है. घर भी मोटा मोटी वही है, मे बी यू अपग्रेडेड अ रूम और समथिंग लाइक दैट. सो मे बी कि जो $2,300 है उसमें पर कैपिटा इनकम में से जो आपका रोटी कपड़ा मकान है आज शायद 1200 होगा. 1200 तो बचता है, ऑलमोस्ट $1,100 बचता है. नाउ $200 10 साल पहले और अब बच रहा है ऑलमोस्ट 1000 से $1,100 बच रहा है. 5 टाइम्स. यस. इंडस्ट्री भी 5 टाइम्स. यस. तो जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में आ रही है, इंडियंस की जो कमाई बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए देन यू कैन इजीली थिंक अबाउट कि ये इसका फ्यूचर कैसे हो सकता है इंडस्ट्री का. आज ये मानना है कि अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है इंडिया में अगर 6.5% गिन लो, 7% गिन लो, इन्फ्लेशन को भी गिनना पड़ेगा क्योंकि हर साल योर एक्सपेंसेस कॉस्ट 6% को गिनो, सो 11.5 से 12% का अगर नॉमिनल ग्रोथ अगर इंडिया में होगी तो ये पर कैपिटा इनकम जो आज $2,300 है तो कितना होगा. और हम एडवाइजर्स में वो गोल्डन रूल ऑफ 72 यूज करते हैं कि इफ यू नो दैट 11% से कोई या 12% से कोई चीज ग्रो हो रहा है तो कितने साल लगेंगे टू डबल. तो 72 के साथ अगर 12% तो 6 साल, व्हिच मींस दैट ये जो $2,300 आज के तारीख में पर कैपिटा इनकम है 6 साल के अंदर, पहले 10 साल लगा था, अब 6 साल के अंदर इट कैन बी 3,600. और मेरा मानना है कि उससे ज्यादा भी होगा, 4,000 भी हो सकता है. वही कैलकुलेशन है कि रोटी कपड़ा मकान will probably go to 1,800 or 2,000. But now when you look at the surplus that can probably come into the Indian economy, it is massive. It's more than $2,000. It can double and more than double. और अगर 5 times हुआ है, मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले 5 साल इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसमें UPI आया, GST आया, so the friction for money moving in the economy is reducing. Formalization हो रहा है. money in motion जिसको कहते हैं, it is becoming easier. I feel कि multiple और भी ज्यादा हो सकता है. So I feel personally कि आज जो 55 lakh crore की इंडस्ट्री है, in the 6 years when this happens, people say that 5 साल या 6 साल में
100 lakh crores होनी चाहिए industry. I feel it can even double from there. It could be 200 lakh crores. So I see the potential for the industry growth, participation also growing quite a lot. So I feel that this is a period where we will see very rapid expansion. As per capita is expanding, you will see the surpluses expanding, and therefore this industry will have a very good future. So essentially what I can understand, Ajit, from a conversation is the propensity to save is actually going up. And it is actually not. So if you looked at the data, and when I say propensity to save, I think propensity to invest is definitely going up. But when you look at the data, it seems like household savings is sort of reducing in that sense, because today you have a digital world. Click and buy. Yeah. So a lot of people are also spending. Credit growth is also happening in the industry. Having said all of that, the surplus that will be available to invest will still be large. okay. And I think that is where, whether it is people spending on goods and services and the industry's profit going up and they investing into the industry, or individuals whose incomes are going up and from their surpluses, investing into the industry, I think that scope is definitely much, much larger. Right. Ajit, as you said, you have been in this industry for a long, long time. Now, what do you think is the role of an intermediary, a role of an advisor, a role of a mutual fund distributor in the wealth creation process of a client? I think आशीष इस चीज को ना दो एंगल से देखना जरूरी है, और वो ये कि what is the investor, how is the investor also evolving over periods of time? Who will be the new investors in this industry? The young people who are investing, how do they think about investments? And then within that, how can an advisor play a role? Because if you look at the habits, or if you look at the behavior of any of the young investors, they are very happy using technology for what they want to do. In fact, there is enough research to say that if you call this generation Z, in fact, there is now generation A, post 2010, 2015 से लेके 2025 तक का जो बच्चे adults बनेंगे, जो income में आएंगे, उनको जनरेशन ए कहा जा रहा है. XYZ खत्म हो गया तो फिर से ए पे चला गया. It's called generation alpha. Right. And this last two generations, they actually don't want too much human contact. And I think that means that they trust technology a lot, they trust what they can review and do within that, and they'll make their own decisions. So an advisor's role then is also evolving because of this new kind of investor and the behavior of the new kind of investors. And I feel that the main purpose of an advisor, or the main advantage of an advisor for any investor, is that as an individual, when you're handling your own money, you put a lot of your own emotions into managing that money. And we end up taking decisions based on that emotional sort of view that we have. And that can lead you into multiple mistakes that you can make. Yes. So when you then have a trusted third party, who's an advisor, who's been in this field for some time, they are able to be that bouncing board to say कि आप क्या सोचते हो इस बारे में. एक ओपिनियन, एक क्रिटिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है. इम्पल्सिव डिसीजन टेक्नोलॉजी से हो सकती है, लेकिन जब आपको एक डेलिबरेट डिसीजन लेना है, जैसा घर खरीदने में, आप चॉकलेट खरीदने में तो आप ऑनलाइन इंट्यूटिव डिसीजन, बट जब आप घर खरीदते हो तो बहुत सोच समझ के करते हो. Right. इन्वेस्टमेंट्स में क्या हो रहा है कि बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग देयर इज स्पेकुलेशन, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि a lot of people are only speculating. Right. So when you want to shift as a person from your saving and speculating, even if that is what you want to do, to investing, I think having a trusted third party who can give you all options and from which you can choose the right solution for what is your requirement, that is where an advisor comes in. The coach. Like आज तेंदुलकर अगर खेल रहा हो या Roger Federer हो, जो भी हो, every one of them, even at the peak of their careers, have had a coach. Yes. And it is like having that coach. Right. You know what you want to do, right, but having a coach can multiply the efficiency of what you're doing much more. ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते हो ये चीजें. सही बात. लेकिन जो आपको गलतियां सुधारना है या आपको बाकियों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उससे सीखना है और स्मार्ट और डिसीजंस लेना है, that is where the coach helps. हमने एक बहुत अच्छा क्रिकेट का एक एनालॉजी दी
So I think so. What I can understand is कि गली क्रिकेट खेलना हो, you don't require a coach. आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कर लोगे. But the moment you move from that gully cricket and you actually want to upgrade yourself to a state or national, international level in terms of investments also going up, possibly there the role of a coach will become far more relevant. Yes, that is absolutely correct. And I think that today I believe that, when people are using technology and people will continue to use technology to invest, there is probably a mental threshold up to which they will use that technology to invest. 2 लाख है, 3 लाख है, 5 है, 10 है, आप शायद खुद से कर लोगे, और कुछ लोग शायद थोड़ा बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं. लेकिन जब वो 10, 15, 20 से ज्यादा हो जाता है, और आपकी जो पूंजी है, you are trying to protect it as well as grow it, that is where the effectiveness of a coach, like you said, here is the analogy of sport, becomes very effective for you to get the best outcomes. क्योंकि ऐसा है कि मार्केट कहाँ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता. आप रिटर्न्स बना सकते हो, गवा भी सकते हो, लेकिन आपका सबसे पहला प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आप डाउनसाइड प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो, आप रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो. सो द बिगेस्ट रोल दैट कोच और एन एडवाइजर इन दिस केस विल डू फॉर यू इज दैट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन हम कैसे करेंगे. उसके बाद आता है कि आपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक अगर कर लिया, then your upsides, probability of those upsides, if you are planned well, is much better. That is where it really helps. So basically, जो आपका कोच है वो कहीं ना कहीं इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, और जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है, आपकी इमोशनल आपसे ज्यादा जुड़ते हो और कहीं ना कहीं इमोशनल मिस्टेक भी वही करते हो. So as you grow up in your portfolio value, कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी, कोच की जरूरत पड़ जाएगी. एक कहावत है, एक FM एलेक्जेंडर नाम के व्यक्ति ने दिया था कि people don't make their futures, they make their habits, and their habits make their futures. तो वो हैबिट की जो हैबिट्स है हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स है, उसके लिए कोच की बहुत जरूरत है. Absolutely true. And you said about behavior and all those things. Now आपने बहुत 2-3 बार बात बोली है. So what is the role of behavior when it comes to investing? लोग होता क्या, लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो. What is that behavior part that comes into it? ऐसा है आशीष कि जब हम इन्वेस्टमेंट के साइंस में अगर हम घुसना चाहें, तो 1950s, 1960s, 1970s वहां से जब शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में, रिटेल लोग पार्टिसिपेट करने लगे काफी हद तक, म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत हुई एंड पीपल आर लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट वेल्थ. तो तब ऐसा एक व्यू था, एक इकोनॉमिक व्यू था कि आदमी बड़ा रैशनल होता है. अगर उनके सामने चॉइसेस रख दिए तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है. लेकिन अगर हम पिछले 50 सालों की अगर एक्सपीरियंस देख ले इन्वेस्टर्स का, तो हम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न जो हम न्यूज़पेपर में और टीवी में और बुक्स में पढ़ते हैं, अगर हम इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो खोल के देखें तो ये रिटर्न्स तो आए नहीं है, काफी हद तक कम आए हुए हैं. और उस गैप को डिफाइन करने के लिए जो वैज्ञानिक, इकोनॉमिक्स के जो वैज्ञानिक है, उनका लेटेस्ट जो साइंस है वो कहता है कि ये गैप जो है वो खुद इन्वेस्टर की बिहेवियर की वजह से है. कि हम ग्रीड और फियर तो हमें पता है कि these are the two emotions with which as human beings we behave. So even with our investments, when things are going very well, then behaviorally there is something called recency effect. रिसेंसी इफेक्ट ये कहता है कि पिछले 2-3 महीने में अगर बहुत ही कुछ अच्छा चल रहा है, मार्केट्स की बहुत अच्छी रिटर्न है, तो आप पूछ जाओगे बोलोगे कुछ नहीं है डरने के लिए, हमें भी रिटर्न्स बनाना है. और अगर जैसे कोविड में हुआ और मार्केट की करेक्शन हुआ, तो उस फियर के बेसिस पे लोग कहेंगे कि यार अभी पैसा मत लगाओ मार्केट में, पता नहीं और कितना डूबेगा, और जितना है वो भी निकाल लो, पता नहीं कहाँ जाएगा. तो ये फियर का इमोशन आ जाता है. लेकिन अभी हमें पता है कि कोविड के टाइम पे अगर लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को अगर टच नहीं किया होता और इनफैक्ट इंक्रीमेंटली भी किया होता उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो आज वो इन्वेस्टर्स जो है सबसे ज्यादा खुश है. तो ये इमोशंस जो है इट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कि इन इन्वेस्टमेंट्स इमोशंस प्ले अ पार्ट. एंड इफ अ इन्वेस्टर इज अवेयर कि मेरे कुछ बायसेस हो सकते हैं, मेरे इमोशंस हैं, क्योंकि ये मेरा पैसा है, मैं अपने और अपने फैमिली के लिए, बड़ा फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, तो वहां पे जो इमोशंस और ये जो बिहेवियर आते हैं उस इमोशंस की वजह से,
that can lead you to make some mistakes as well. Yeah. तो वहां पे how do you protect yourself from that? In Right. fact, जो इस फील्ड का जो सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट था, डैनियल कानमन नाम है उनका, उनका देहांत मार्च में हुआ. हाँ. एंड Yes. सो ही वाज डेफिनेटली अ पर्सन आई वाज फॉलोइंग. Yes. उनको जब पूछा गया था कि आपने तो अपने साइंस में बहुत सारे बायसेस के बारे में बात किया हुआ है और करीब 100 ऐसे बायसेस के उन्होंने टर्म्स दिए हैं कि क्या होता है, ये बायस होता है, वो बायस होता है, रीसेंसी इफेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी, काफी सारे. हाँ जी. तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बायसेस में से सबसे जो चैलेंजिंग बायस है वो है बायस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस. हाँ. उन्होंने कहा कि लेकिन हम ह्यूमंस हैं तो हमारा ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा. ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस आपको बहुत हद तक Hit कर. it can hit you. Yes. And everybody is affected by this, not just investors. Even experts are, they give more probability to think that they know what the future is likely to be, and it has always been proved wrong. Yes. तो अगर आपको बायसेस से अगर बचना है और आपको एक डिसीजन ऐसा लेना है, that is where you focus on a process, which is where an advisor, a trusted advisor comes in. because हमने मार्केट्स को जब एनालाइज किया हुआ है कि रिस्क कितना लेना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स की कितनी रिस्क है, फंड मैनेजर से बात करके जो पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन है वो जानते हैं. हाँ. So they are able to help you to control to Yes. a large extent this sort of a mistake that you could make because of your behavioral bias. ये आपने भी recency bias भी कहा, ओवर कॉन्फिडेंस bias भी कहा है. हमारी इंडस्ट्री में 90% जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो 2014 के बाद आए. Right? हम 10 लाख करोड़ पे थे, आज 55 लाख करोड़ है. But in terms of number of investors, also we have grown substantially after 2014. और 2014 के बाद बहुत मेजर डिप एक कोविड का 4 महीने के लिए आया. उसके अलावा generally it has been a quite a runway that we have seen. What is your advice to investors who actually come after 2014 जिन्होंने तकलीफ नहीं देखी है बहुत ज्यादा? मैं ये मानता हूँ कि आशीष ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपने कही कि अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम में आपने बड़े बड़े डिप्स नहीं देखे हो एंड यू हैव ओनली सीन द कोविड, और कोविड भी आपको 6 महीने बाद या 4 या 6 महीने बाद आपको दिखा दिया कि मार्केट्स आ रहा है, यू फील लाइक अरे इतना बड़ा कुछ हुआ और फिर भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखो ये 50% और 40% और ऐसे बड़े बड़े रिटर्न्स हमें दिखते हैं. तो आई फील दैट इन इन्वेस्टर्स को अगर मैं कोई सलाह अगर देना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न. और ये टेक्निकल बात है तो मैं उसको बड़ा टेक्निकल नहीं करना चाह रहा हूँ अपने ऑडियंस के लिए. इसका अगर मैं एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ तो ये कि सबसे पहला चीज जो आपको देखना है कि आपके पास वक्त कितना है. आप जब पैसे लगा रहे हो, कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि आपको बच्चों की फीस देना है, ये 3 महीने के बाद या 6 महीने बाद देना है. आपको कोई घर खरीदना हो 3 साल बाद या 5 साल बाद, आपको रिटायर करना हो 10 या 15-20 साल बाद. तो ये आपका हो गया वक्त. उस वक्त के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है. और सीक्वेंस ऑफ रिटर्न जो मैंने कहा वो ये है कि जब आपको ये पता होगा कि आपको इतनी पूंजी बनानी है, इतनी वेल्थ बनानी है, तो आपको ये पता है कि ये रिटर्न आपको शायद जरूरत पड़ेगी. आपका जितना आज के टाइम पे सेविंग्स हैं उसको अगर बढ़ाना हो और आप उसमें एसआईपी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको इतने रिटर्न्स की जरूरत है कि आपका वेल्थ बढ़े जब तक आपका वो गोल पहुंचे. तो आपको वो रिटर्न को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. और होता क्या है कि जब हम एक अच्छे वक्त से गुजरते हैं तो हर वक्त जब कुछ और दौड़ रहा है तो हम कहीं और से निकाल करके अरे ये तो सिर्फ 14% रिटर्न है, ये तो सिर्फ 15% रिटर्न है, पीपीएफ में क्यों पैसा लगाऊं, मैं यहाँ पे क्यों करूं, मैं तो डिफेंस फंड में या कोई मैन्युफैक्चरिंग फंड में, कोई थीमेटिक फंड में या कोई स्मॉल कैप फंड में लगा रहा हूं क्योंकि वहां पे रिटर्न्स दिख रहा है. वो आपको दिखेगा कि ये रिटर्न दिख रहा है पिछले 1 साल का, लेकिन जब वो डिप भी होता है तो वो आपके सीक्वेंस ऑफ रिटर्न जो आपकी जरूरत है उसको डिस्टर्ब कर जाएगा. उसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम ये कहते हैं कि 100 रुपया जब 50 रुपया बनता है तो ये 50% का लॉस हुआ. लेकिन जब वो 50 रुपीज को आपको फिर से 100 रुपया ले जाना है तो आपको जरूरत है 100% रिटर्न होनी चाहिए, तब जाके 50-100 बनता है. तो जो डिप्स जो आती है, साइक्लिकल मार्केट्स हैं, हर चीज में साइकिल्स हैं, तो वो डिप्स को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे कि आपका सीक्वेंस ऑफ रिटर्न डिस्टर्ब ना हो. वो अगर इन्वेस्टर्स इस चीज को सोचे कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है और मेरा रिटर्न
एवरेज में कितनी होनी चाहिए ताकि मैं उस टाइम फ्रेम तक मैं अपने गोल तक पहुंचूं, फिर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि आप रिसेंसी इफेक्ट जो हम कहते हैं कि अब कुछ चल रहा है, यहाँ से निकाल दिया वहां डाल दिया, उसमें आपका जो है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है। The sequence of return is really amazing. बहुत चीज मेरे दिमाग में आ रही है। और ये 2014 के बाद एक SIP ने एक जंप लिया। और मैं बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार जब निवेशक मुझसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आशीष जी हमें SIP करनी है, म्यूचुअल फंड नहीं करना। ये कॉमन दोनों हो गया। नाउ व्हाट्स योर व्यू ऑन हाउ शुड एन इन्वेस्टर थिंक SIP as? मैंने कुछ समय पहले बिहेवियर की बात की। मेरे हिसाब में SIP सिर्फ एक तकनीक है इन्वेस्टमेंट करने का जो अपने बिहेवियर को संभाल सकता है। अगर आपके जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो सैलरीड इनकम पे हैं तो ये तय है कि उनका महीने का एक कमाई होता है, उसमें खर्चे होते हैं और कुछ बचत करना, और उस जो बचा रहे हैं उसमें से वो निवेश करना चाह रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अगर एक डिसिप्लिन रखना हो कि मैं मेरे इनकम से इतनी परसेंटेज, इतनी मात्रा में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो SIP उसके लिए काम आता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर आप सिंपल तरीके से अगर समझना चाहोगे और अगर आप ये कॉमन सेंस अप्रोच लेते हो कि 10-20 साल बाद तो ये मार्केट तो ऊपर ही होगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है पहले भी पिछले 20-25 सालों से जो है मार्केट, आज हम जब 74-75,000 की इंडेक्स बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अब बस कुछ ही सालों पहले तो ये 10-20-30 हजार जो भी था इंडेक्स, तो ये मार्केट तो ऊपर ही जाएगी। और उसका एक कारण भी है, वो मैं बाद में वी कैन डिस्कस दैट। तो ये बात तय है कि लमसम इज बेटर देन SIP। क्योंकि आप जब भी लमसम लगाओगे, अगर आपका ये कॉमन सेंस कहता है कि मार्केट अगर मेरे पास 10 या 20 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आपके पास जब भी लमसम हो पूरे लमसम लगा। SIP हम करते हैं क्योंकि हम एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम ये कहते हैं कि जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, आपको अगर डिसिप्लिन लाना हो अपने इन्वेस्टमेंट में तो आप SIP कीजिए। इस बहाने बचा लो, इस बहाने तो आप नहीं तो खर्च हो जाते हैं। नहीं तो खर्च हो जाते हैं। आप डिसिप्लिन रखोगे उसका कि आप आप 10% के SIPs कर रहे हो, 2-3 फंड्स में SIP कर रहे हो, तो वो डिसिप्लिन के लिए वह हेल्प होता है। और रिटर्न के हिसाब से अगर कॉमन सेंसिकल अगर देखा जाए तो लमसम इज ऑलवेज बी बेटर देन SIP इफ यू बिलीव ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा एक साथ होना भी चाहिए, एक होना चाहिए। मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ आशीष, और मैं ये मानता हूं कि हमारी इंडस्ट्री में शायद एक अगर गलती अगर हमने की हो तो वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि आज अगर हम किसी निवेशक को अगर पूछे कि सर आपके घर में आप अपनी वाइफ जब इन्वेस्ट करते हो तो आप सोना खरीदते हो, गोल्ड इज अ वेरी इजी इन्वेस्टमेंट, आप खरीद कैसे, गोल्ड को कैसे आप खरीदते हो, तो वो कहेगा कि मैं 10 ग्राम खरीदता हूँ या मैं तोले में खरीदता हूँ, है ना, ऐसे करेंगे। अच्छा, तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आप जानते हो, कॉमन सेंस है लोग रियल एस्टेट में, आप रियल एस्टेट कैसे खरीदते हो, बोलेंगे कि मैं स्क्वायर फीट देखता हूँ कि मुझे इतने 3000 स्क्वायर फीट की घर चाहिए, 10,000 की चाहिए, या 1 एकड़ का जमीन खरीद रहा हूँ। ये हम यूनिट्स में बात करते हैं, गोल्ड और रियल एस्टेट। जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं हम रिटर्न्स की बात करते हैं, हम यूनिट्स की नहीं बात करते, है ना। तो इस इंडस्ट्री को आशीष अगर हम शुरुआत से देखें तो इस इंडस्ट्री का नाम क्या था? यूनिट ट्रस्ट। तो अगर हम ये समझ में आ जाए कि हम यूनिट्स खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, इक्विटी खरीद रहे हो, जो भी खरीद, हम यूनिट्स खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहा हो, रियल एस्टेट खरीद रहा हो, हमें यूनिट्स पे फोकस रखना चाहिए। रेगुलेशन है, सारे ही म्यूचुअल फंड्स अच्छी तरीके से रेगुलेटेड है, प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन आप यूनिट्स खरीद रहे हो। जब अगर आप यूनिट्स पे फोकस रखोगे तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस से ये एक व्यू आएगा कि जब करेक्शन है तो मुझे ज्यादा खरीदना चाहिए, और जब मार्केट का रिटर्न्स बहुत ज्यादा दिख रहा है तो मुझे थोड़ा सा संभलना चाहिए कि प्रॉफिट जल्दी से बुक करके मैं कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट्स में डालूं। लेकिन हम आज के तारीख पे रिटर्न्स को चेज करते हैं कि क्या रिटर्न हुआ, टॉप फंड कौन से हैं, उसमें हम घुस जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमें यूनिट्स के दायरे से, एंगल से देखना चाहिए। और यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा SIP को। अगर लोगों को SIP पसंद है तो, और SIP का कोई अगर एडवांटेज है तो वो ये है
कि वो आपको ज्यादा यूनिट्स देता है जब वैल्यू कम होती है कोई फंड की या मार्केट की, और जब मार्केट की वैल्यू बढ़ती है या किसी फंड का वैल्यू बढ़ता है तो आपका एसआईपी आपको कम यूनिट्स मिलते हैं ताकि आपने ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं लिया। तो वही प्रिंसिपल अगर आप लमसम्स में भी लाओगे, आपके पूरे इन्वेस्टमेंट्स में लाओगे कि मुझे यूनिट्स पे ध्यान देना है। मुझे आशीष हो, जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो उन्होंने जो सिलेक्ट किया होगा कोई एक पोर्टफोलियो, तो ये ऐसा पोर्टफोलियो जिसकी यूनिट्स मुझे एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आप देखिए कि आप यूनिट्स का चार्ट अगर आप देखोगे कि कलेक्ट करते जा रहोगे तो यूनिट्स का चार्ट एक ही तरीके से बढ़ता रहना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट का अगर चार्ट देखोगे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपको जब कॉन्फिडेंस चाहिए तो बस आप यूनिट्स एक्यूमुलेट करते जाइए। एसआईपी में वो एक है कि आप एक कर सकते हो, लेकिन एक और प्रोफेशनल इन्वेस्टर के साइड पे अगर आप सोचोगे कि आपको इवॉल्व होना है तो आप यूनिट्स का जो ये नजरिया है, ये थॉट प्रोसेस है, आप लमसम्स में भी ला करके ये देख सकते हो कि आज शायद कुछ सेक्टर बहुत हॉट है, रिटर्न्स तो बहुत अच्छी दिख रही है, मुझे उन सेक्टर्स को देखनी चाहिए कि जहां पर अर्निंग्स अच्छी हो उस पोर्टफोलियो की, लेकिन प्राइसेस कम हो, तो ये तो बिल्कुल सोना है, तो मुझे ये खरीद लेना चाहिए। राइट, दैट वुड बी। ठीक है, आपने भी रिटर्न्स को सेक्टर्स की बात करी, यू नो, एंड यू आर इन टच विद फंड मैनेजर्स। यस। सो इन योर पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इन इट्स इकोनॉमी, रिटर्न्स की बात करें तो आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल एक क्या व्यू दिखता है हमारे मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके? मैं ये मानता हूँ कि पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने 30 साल के करियर जो मेरा रहा है उसमें से करीब 25 साल म्यूचुअल फंड्स में मेरा गुजरा है। मैंने लाइफ में एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। ऑल ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स आर इन म्यूचुअल फंड्स। मैंने एक हाथ स्टॉक खरीदा था मेरे भाई के कंपनी में जब वो आईपीओ जा रहे थे, और मैंने 2 साल बाद बेच भी दिया होगा। तो डीमैट अकाउंट में ये सारा मेरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसका मैं एक सिंपलिस्टिक तरीके से ऐसे सोचता हूँ कि अगर हमें इंडिया अच्छा लगता है तो इंडिया के अंदर की कंपनियां अच्छा लगता है कि इसके जो इंडिया अगर बढ़ेगा तो सारे जो सेक्टर्स और कंपनीज अच्छी रहेगी। तो इसका अगर हम देखा जाए तो फिर इंडिया की जो ग्रोथ है तो वो हम कहते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि 6%, 6.5%, 7% समझिए कि ये ग्रोथ है। और जैसे कि हमने पहले कहा, हमें नॉमिनल ग्रोथ देखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कोई चीज होता है जिससे प्राइसेस हर चीज की बढ़ती है। तो नॉमिनल ग्रोथ रेट हो सकता है कि ये 6% का, अगर आप कंजर्वेटिव एकदम कंजर्वेटिव 6% का ग्रोथ ले ले इंडिया का, और हमने 5% अगर हमने इन्फ्लेशन भी जोड़ दिया तो 11% करीब ये इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जितने सेक्टर्स हैं, जितने कंपनियां हैं, सबको अगर सबकी ग्रोथ को अगर जोड़ा जाए तो उसके एवरेज में ये 11%। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर का काम ये होता है कि अगर ये एवरेज में 11 है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है कि शायद 2-3 साल में ये 11 से ज्यादा रिटर्न दे जाएगा, कौन सा ऐसा सेक्टर है शायद ये 11 से कम भी हो सकता है, तो उसको हम अवॉइड करें, तो वहां जाके हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक एक्सपेक्टेशन अगर किसी का हो तो हम ये भारत की जो ये नॉमिनल ग्रोथ रेट है, तो अगर ये 10-11% रहेगी और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हम पैसे दे रहे हैं तो उनका ये काम होता है कि वो 1-2% उससे ज्यादा दे, तो ये 10 से 12-13% की जो रेंज है, इसकी अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी कि 5 साल से ज्यादा जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके अगर कम हो तो आप उसको कोई हाइब्रिड या कोई फिक्स्ड इनकम फंड्स में या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रखें। तो आप जब इन्वेस्ट करें तो इस एक्सपेक्टेशन को अगर लेके चले तो शायद डिसअपॉइंटमेंट की जो गुंजाइश होगी वो बहुत कम रहेगी। दैट इज व्हाट आई बिलीव, एंड आई थिंक हमारे फंड मैनेजर्स भी ये कहते हैं कि इंडिया की जो सेक्टोरल जो कॉम्पोजिशन है वो काफी हद तक अच्छा है। आप अगर देखेंगे तो फाइनेंस की सेक्टर बड़ी है, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी बड़ी होती है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि बाकी के जैसे इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं जहां पे उनकी एनर्जी की सेक्टर हो या कुछ और सेक्टर हो, एक सिंगल सेक्टर बहुत बड़ा होता है मार्केट का। इंडिया में वो प्रॉब्लम नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड, हम काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है। और जो हमारी जो बैंकें हैं और हमारी कॉर्पोरेट जो हैं, पिछले 8-10 सालों में उन्होंने काफी अपनी बेल्ट्स को टाइटन किए हैं कि कहां जाकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमने ज्यादा बोरो ना किया हो। तो बैलेंस शीट अगर देखें तो बैलेंस शीट कंपनी की हो या बैंक की हो या इंडिया की हो, तो आज काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। तो उस कॉन्फिडेंस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा एक्सपेक्टेशन ये इंडिया की जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है +-2%, ये रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना
आप कुछ भी आज आप कैसे भी आप एडवाइजर के साथ एक पोर्टफोलियो बनाए तो ये एक्सपेक्टेशन रख लेना चाहिए। प्रॉब्लम कम्स इज दैट अगर आपको मार्केट में दिख रहा है कि ये तो 40% है 50% है और आप फिर कूदते हो कि मैं उसके पीछे मैं जाना चाहता हूँ, वो रिसेंसी बायस थोड़ा सा ये है कि मैं शायद उसको फिलोसफी कहूंगा। दे से दैट इफ यू वांट टू बी हैप्पी एनीबॉडी कैन बी हैप्पी, बट इफ यू वांट टू बी हैप्पियर इट्स डिफिकल्ट। Because when you say you want to be happier, yes, happier compared to who? Then you comparison शुरू हो जाता है कि अगर ये है तो मुझे क्यों नहीं, उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। तो सही बात है। if you want to be happy, you can be happy. मेरी सारी जो सफेद कैसे वाली बात है, वो वाली बात होगी। राइट। तो अजीत, आपने 21वीं सदी में जिस तरह भारत बढ़ रहा है उसके बारे में चर्चा करी है, एक निवेशक के एंगल से, एक इन्वेस्टर के एंगल से, एक आम आदमी के एंगल से बताएं कि उसकी लाइफ में 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मैं ये मानता हूँ आशीष कि अगर आप दुनिया भर में भी अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पूछे या आप इंडिया के एंगल से भी अगर इस क्वेश्चन को पूछे, तो मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को अपने रिटायरमेंट को लेकर के रहना चाहिए और है भी। आज कहते हैं कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी almost 70% of people are living paycheck to paycheck. अच्छा, इतने बड़े देश में? It is in such a developed country also because हमने अपने schools में पाइथागोरस थ्योरम तो सीख लिया, लेकिन हम वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और हेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, ये दो जो बहुत ही एक अहम और इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी अडल्ट को, हेल्थ एंड वेल्थ। इसके बारे में हम उतने हद तक नहीं सीखते स्कूल्स में। तो जब व्हेन वी बिकम अडल्ट्स हम ये पूछने लगते हैं कि यार मेरा जो सीनियर है वो तो रियल एस्टेट में है, कोई यंगस्टर होगा बोलेगा कि यार मेरा जो दोस्त है वो तो बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई इसमें लगा रहा है, कोई इक्विटी में है, कोई डेरिवेटिव्स में है, एफएनओ कर रहा है। तो हम उसके पीछे लग जाते हैं कि शायद हमें भी वही करना होगा और हम खुद के बारे में ये नहीं सोचते कि हमारा रिस्क क्या है, हमारे घर की परिस्थिति क्या है और डिपेंडेंसी क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर इसको अगर हम देखें कि बस फिर चैलेंज क्या होगा किसी को, चैलेंज ये है कि today the generation that is being born today, they are saying that scientists are saying that 1 in 3 of those people would live to an age of 100. Longevity जिसको कहते हैं, मेडिकल एडवांसमेंट्स इतनी हो रही है और अगर आपके पास वो मीन्स हो और हेल्थ केयर सिस्टम्स हो और अवेयरनेस इस तरीके से बढ़ रहा है कि एवरेज एज इज कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग। फॉर द last many decades we have actually been adding, according to some experts, about 4 months to the average age every year. But going forward, because ये artificial intelligence और computing power कहो, आप सब medical advancements के लिए जो scientific innovations हो रही है, vaccines आ रहा है, इसके वजह से जो है ये 4 months जो average age जो है, हम लोग पिछले जो 20-30 सालों से हम ऐड करते आ रहे हैं, ये शायद 6 महीने या 8 महीने या साल, every year we will add 1 more year to possibly to the average age. Yes. So the younger generation has this challenge that there is a high possibility that you could live to 90s and 100s also. In fact, आज भी अगर हम हमारे दोस्तों में, हमारे families और relatives में देखें तो we will probably find that there are a lot of individuals who are crossing 90 and are pretty. Yes. तो अगर आप longevity देखें तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग का ये कहना था कि आप 30 साल काम करोगे, आपको इतनी पूंजी बनानी है कि आप अगले 20-25 साल तक के लिए आपको पूंजी की जरूरत है। लेकिन अगर आप 50 साल और रहे तो फिर क्या होगा? और ये एंजाइटी जो है, मेरे ख्याल में जो चैलेंज है और एंजाइटी कहो उसको, तो रिटायरमेंट को लेकर के उसको कैसे डील करें हम, व्हाट स्ट्रेटजी कैन वी अडॉप्ट, ये सबसे बड़ा हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए क्वेश्चन है जो हमें एक इन्वेस्टर्स के लिए हमें आंसर करना होगा हमारी तरीके से कि हाउ टू हेल्प देम। राइट। एंड रिटायरमेंट में आपने जो बात कही है कि आप 30-40 साल उसके बाद में आप कोई लाइफ रिटायरमेंट जी नहीं पड़ सकती है मेडिकल एडवांसमेंट के जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे आपने एआई बोला, आपने हम टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, हमारी कहीं ना कहीं वर्किंग लाइफ कम नहीं हो रही? पहले तो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे, हम 25 से काम करते थे, 60 तक काम करते रहते थे। आज की तारीख में आप एक बैंक जाते हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो अमूमन आपको 25-30 साल के ही बच्चे मिलते हैं, हमारे बड़े से उनके उसी एज ग्रुप में मिलते हैं। हमें 55-60 वर्ष तो ज्यादा दिखते ही नहीं। तो आर वी एक्चुअली गोइंग टू वर्क फॉर 30 इयर्स इफ आई स्टार्ट माय 25? डू यू थिंक हम 25-30 साल 30-35 साल काम भी करेंगे? मैं आशीष इसको एक
एक अलग एंगल से इसको आंसर करना चाहूंगा। आज अगर हम टीवी देखें या मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ें या लोगों की एक्सपर्ट्स की बातें सुने रिटायरमेंट की सब्जेक्ट को लेकर के, वर्क लाइफ की बातों को लेकर के, मेरा ये मानना है कि हम 1950 में अटके पड़े हुए हैं, 1960 में अटके पड़े हुए हैं। जो इमेज आता है मन में वो ये है कि हमें एक एज तक काम करना है, उसके बाद हम बीच पे रहेंगे या हम ट्रैवल करेंगे, हम मजे मस्ती करते रहेंगे और हमारे पास पैसा होना चाहिए कि जब हमारी पूरी लाइफ कटे। वो जमाना और वो इमेज जो है आज भी लोगों को, जब रिटायरमेंट के बारे में हम मैगजीन, न्यूज़पेपर, एडवाइस, एक्सपर्ट्स को पूछते हैं तो हम उसी पे अटके हुए हैं, दिखाया वही जाता है, बीच में बैठे हैं, पीछे तो लेकिन ये आप भूल जाते हो कि वो जमाना जो था वहां पे पेंशन हुआ करता था और पेंशन होता था डायरेक्ट बेनिफिट प्लान, यानी कि आपने अगर कहीं भी अगर आपकी नौकरी हो तो जब आपका खत्म हो जाता है नौकरी एट 55 और 60, तो आपको जो इनकम है, सैलरी है, उसकी 50 या 60 या 70% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी विल बी गिवन टू यू फॉर लाइफ। तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस हैज चेंज्ड इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 15-20 इयर्स। इट इज नाउ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, नॉट डायरेक्ट बेनिफिट। तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि गवर्नमेंट्स और कंपनीज ने कहा कि भाई हम आपको पेंशन नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर कि हम नहीं देंगे, आप पैसे लगाओ, हम बताएंगे कि रिटायरमेंट के लिए ये टैक्स ऐसा होता है वैसा होता है, आप लगाओ, आपको जो बना वो आपका बना, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि आपका रिटायरमेंट पेंशन क्या होगा, इनकम आपको क्रिएट करना है। The responsibility is now on the individual. It is not on the corporate. It is not on the government. And therefore, this question becomes important. दूसरी बात आपने AI की कही और वर्क लाइफ श्रिंक होने की बात कही, तो मेरा ये मानना है कि there is research that is saying that the new generation ना, हम खामखा शायद डर रहे हैं कि शायद उनको एंजाइटी होनी चाहिए। I think they will figure it out better than our generation. रिसर्च ये कहता है कि दिस न्यू जनरेशन दे आर ओके चेंजिंग देयर जॉब्स एंड द टाइप ऑफ जॉब दैट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, एंड दे मे एंड अप डूइंग 10 to 12 different jobs all through their life. In fact, I'm trying to think about the source of the information, but I know that I have heard this at a conference, and where they were saying that research is suggesting that the new generation will earn lesser than their parents' generation, but they will be happier than their parents' generation. Achha. Because they will not get stuck like us in a job that they don't like. Okay. So this image that we have कि we are working up to for 25-30 years, then we stop and then it is our retirement time. A lot of people who are in salaried feel कि बस मुझे अभी बस काम बंद करना है. But if you ask professionals, जो कोई अगर आर्किटेक्ट हो या कोई अगर डॉक्टर हो, they say बस हमें क्या रिटायरमेंट, हम तो जब तक हाथ चलेगी और हमारी स्किल्स हैं तो हम काम करते रहेंगे. And I think the new generation is also saying that, why are you telling us about retirement? I think we will keep working till we can, but we will only work with what we enjoy and what we love. And इसमें एक बहुत बड़ा lesson मेरे हिसाब से ये है कि if you want to think about remove the anxiety of your retirement, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका जो primary income है, that is coming because of one skill that you have. कि आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, या आप सर्विस में हो, आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, जो भी एक स्किल है जिसमें से आप, in case you can think of one more skill from which you can earn money. Okay. And I don't mind whatever money you earn. It could be 20,000 rupees, 30,000 rupees. होगा आपका 3-5 साइड हसल, आपको कुछ बोलते हैं, साइड हसल बोलते हैं, गिग बोलते हैं, जो भी. But if you can, whether it is the woman in the house, the man in the house, if you have a skill from which you can make money, which is your talent, it could be cooking, it could be, you can become a good yoga instructor, you could be a fitness instructor, you like pets, you can do pet grooming, आपकी आवाज अच्छी है, आप voice over कर सकते हो, आपको languages आती है, आप translation कर सकते हो, जो भी कुछ, if you can think about monetizing it, you do not have to worry about retirement at all, because you can do it till you want to. I think the difference is that you have to realize that your money is coming out of one skill. That's a risk. अगर आपके पास दूसरा स्किल हो जिसमें से आप जो कुछ भी आप कमा सकते हो, you will not be dependent on your children in your older life, which a lot of people fear कि मुझे अपने बच्चों पे जो है डिपेंड नहीं होना है. So there are ways that people can think about. I don't think it's very difficult. I don't think that money and having a big corpus is as important as it is made out to be.
मुझे लगता है कि एंजाइटी वहीं से शुरू होती है कि हमारी इंडस्ट्री कहती है नहीं, आपको 30 साल और 20 साल के लिए जो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 7 करोड़ की जरूरत है, 10। लोग बोलते हैं कि बस ये पैसा मैं कहां से लाऊं, कहां से वेल्थ बनेगी, एंड दे एंड अप टेकिंग रिस्क to make that wealth, right? Because people start late towards this. Yes. So this is just a overall sort of view that I have on, Right. on this subject. I think the biggest challenge is retirement, because we have to realize also you get a loan for every financial goal of your life. You don't get a loan for retirement. बुढ़ापे के कोई पैसे नहीं, कोई आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप एसआईपी कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, फॉरेन जाना है, बिजनेस शुरू करना है, आपको सब के लिए अगर थोड़ा सा गैप भी पड़ जाए ना तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको रिटायरमेंट में अगर गैप पड़ जाए तो आपको लोन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं। सो द प्रायोरिटी ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट it has to also change in today's world. So you spoke a lot on retirement. आप ये बताएं कि आम आदमी, आम निवेशक रिटायरमेंट के लिए उसके लिए बेहतरीन या सबसे अच्छा ना बोल के बोलूंगा कि उसको करना किसमें चाहिए, पैसा निवेश करना। मैं कहूंगा कि इसका पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने हेल्थ की ख्याल रखें। मैं ये मानता हूं कि आप अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, आपके जो टाइम होगा 60 के बाद, अब जब तक भी जियो 80 90 जो भी हो, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट हेल्थ का होता है। जब कोई आदमी रिटायर भी होता है तो और अपना कॉर्पस भी बन चुका होता है कि अपने पास 3-4 करोड़ है जो हमारे लिए काफी है, पहले 2-3 साल जो है वो हनीमून में चला जाता है, लेकिन उसके बाद जब वो पर्पसफुली कुछ अगर करना हुआ और उनको रेस्पेक्ट नहीं है जो पहले उनके जॉब की रेस्पेक्ट थी, तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो चीजें हैं, और ये काफी रिसर्च्ड है कि जब लोग एक्टिव नहीं हो फिजिकली एंड मेंटली, अगर एक्टिव नहीं हो, सो योर हेल्थ विल डिटेरियोरेट फास्टर, otherwise it will be slow or it will not be there, you'll be able to take care. So I think the objective is for a human being should be that first, before coming to the investment part of it, is that how active am I mentally and physically? This is rule number 1. Right. क्योंकि एक बात उसका फाइनेंस के भी कनेक्शन ये है कि the bigger problems you're likely to have later in life is related to health, and the cost of that is very high and it can impact your investments a lot. Yes. Therefore, initially taking your health insurance and your life insurance, term insurance is whatever you take, is a very critical step before you think about कि मुझे investments के लिए क्या करना है। सही बात। एक वो चीज। दूसरा ये कि अगर longevity या लंबे आयु के लिए अगर आप जियोगे, अगर ये रिस्क है लोगों का कि बस मेरा पैसा भी तो लास्ट होना चाहिए 30-40 साल, तो आप इक्विटी जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो पोर्टफोलियो में। आप जितने भी उम्र के हो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको ये पता करना है एक एडवाइजर के साथ कि मेरा प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। बस ये बात। और इक्विटी के बारे में जब मैं सोचता हूँ आशीष, मेरा ये मानना है कि इक्विटी एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें इस दुनिया में जो जितने इनोवेशन होते हैं, जो सारा जो कैप्चर प्रॉफिट जिसका कैप्चर होता है वो इक्विटी का होता है। अगर आप ये मान के चलो कि आपको पैसे बनाने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए 7 ही तरीके होते हैं। इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स या बैंक डिपॉजिट्स में कर सकते हो, आप गोल्ड या प्रेशियस मेटल में कर सकते हो, आप कमोडिटीज में कर सकते हो, आप करेंसी में कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो, और एक ऑल्टरनेटिव्स में कहूंगा जिसमें अभी एआईएफ, पीएमएस जैसी की चीजें हैं, हेज फंड्स हैं, और ऑल्टरनेट्स वो चीज होती है जिसका आपको कहीं डेटा नहीं मिलेगा। मेरा डेफिनेशन ये है कि ये 7वां जो है इक्विटी, फिक्स्ड इनकम जो डेट और बैंक डिपॉजिट वगैरह, गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, करेंसी, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट्स का ये डेफिनेशन है कि सारे जिसमें पैसे बकायदा बन सकते हैं लेकिन उसका आपको कंपेयर करने के लिए डेटा कहीं नहीं मिलेगा, तो वो सारे चीज ऑल्टरनेट्स हो गए। हो सकता है कि 20-25 साल या 50 साल बाद ये ऑल्टरनेट्स में कुछ निकल करके एक रेगुलर अलग हो जाए। 50-80 साल पहले आशीष इक्विटी जो आज हम इतने लोग करते हैं वो भी एक ऑल्टरनेट था। आपको पता ही नहीं था कि ब्रोकर जाके कर क्या रहा है आपके पैसे से, जो वेल में वो जो स्टॉक खरीद रहा है जैसा खरीद रहा है। आज उसका डेटा है, बकायदा डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम का डेटा है 30-40 साल। आप कंपेयर कर सकते हो कि इसका रिस्क और इंटरेस्ट रेट के साथ क्या रिलेशन है, मुझे क्या करना चाहिए। ऑल्टरनेट्स में जैसे कि बिटकॉइन हुआ, पेंटिंग्स हुआ, कोई लोग घड़ियां खरीदते हैं, कुछ ऐसे चीजों में एंटीक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा ऑल्टरनेट्स हुआ। तो ये सारे आपके पास है। इस सारे चीजों में इक्विटी
क्योंकि एक ही ऐसा एसेट क्लास है जिसमें दुनिया की जो प्रॉफिट है वो कैप्चर होता है। अगर किसी कहीं कोविड हो गया, किसी ने वैक्सीन बनाया तो उसका प्रॉफिट यहाँ कैप्चर हुआ। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट की दुनिया ईवी में और बैटरी कार में जा रहा है तो उसकी प्रॉफिट यहाँ कैप्चर होगा। तो अगर कुछ नई तकनीक और टेक्नोलॉजी आ रही है, 3D प्रिंटिंग, इस चीज का, उसका प्रॉफिट यहाँ कैप्चर हुआ। तो एज अ पर्सन इफ यू वांट टू टेक केयर दैट ये दुनिया जहां जा रही है यहाँ पे इन्फ्लेशन भी है और महंगाई बढ़ सकती है, तो मुझे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां से मैं ये प्रॉफिट, मैं भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो एक अच्छा सेफ इक्विटी से मैं सेफ इसलिए कर रहा हूं कि आप लार्ज कैप पोर्टफोलियो, लार्ज मिड कैप पोर्टफोलियो, बहुत तरीके के पोर्टफोलियो से जो आप बिजनेस बढ़ेगा तो सेफ एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आपके रिस्क के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक आम आदमी को अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, उन्हें क्या करना है, पहला स्टेप ये होगा कि अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हो और क्या करोगे। और दूसरा ये कि आप जहां कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे आपको इक्विटी की प्रोपोर्शन आपको देखना होगा कि जरूरत क्या है। हमने ऑफिस में रिसेंटली एक ऐसा एक एग्जांपल लिया आशीष की, अगर एक ट्रेडिशनल आदमी 60 पे रिटायर कर करके जो है वो अपना पैसा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, और आज सेबी और एम्फी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि आप प्रोजेक्शन करते वक्त आप क्या रिटर्न्स लोगे, आप कंजर्वेटिव के क्या प्रोजेक्शन लोगे, इक्विटी की क्या लोगे, हाइब्रिड की क्या लोगे। तो हमने उसी आंकड़े को लगा करके देखा कि वो 23 इयर्स, अगर उनके पास 2 करोड़ रुपए हैं तो और 6% का इन्फ्लेशन हर साल का भी उन्होंने मान के कर लिया, तो वो पैसे से अगर उनको 1 लाख रुपए हर महीने निकालना है इस 2 करोड़ की पूंजी से, तो वो आपको 23 इयर्स लास्ट। अगर आपने उसी 2 करोड़ को 6% की इन्फ्लेशन में आपने दिमाग में रखे और आपको 1 लाख रुपए निकालना है, आपने उसको 3 बकेट में बांटे, 1/3, 1/3, 1/3, 33, 33, 33। फर्स्ट 1/3 या 33% हाइब्रिड कंजर्वेटिव जैसा कोई, दूसरा 1/3 आपने बैलेंस्ड एडवांटेज या हाइब्रिड प्रोडक्ट, और तीसरा आपने कोई फ्लेक्सी कैप या लार्जर मिड कैप फंड में डाल दिया। द मनी विल नेवर एंड, इट विल नॉट एंड, इट इज परपेचुअल। आप मतलब मरने के बाद बच्चों को देके जाओगे, बच्चों को देके जाओगे 1 लाख रुपया हर महीना, एवरी ईयर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एट 6%, आप विड्रॉ करते रहोगे इस 3 बकेट में। और उसका सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस ये है कि आप जब पहले बकेट से पैसे निकाल रहे हो, जो आपका कंजर्वेटिव बकेट है, वो शायद आपको 5-6 साल लास्ट करेगी, 1 करोड़ का जो पूंजी आपकी। फिर आपने दूसरे बकेट और तीसरे बकेट को टाइम दे दिया अभी, तो दूसरे बकेट से अभी आप निकालने शुरू कर रहे हो तो वो 6-7-8 साल। जब तक आप तीसरा बकेट पहुंचते हो तो आपने तो 12-15 साल दे दिया तीसरे बकेट को, वो डबल ट्रिपल चौगुना हो चुका होता है इक्विटी का। अगर हम कोई रेट मान के चले कि किस तरीके से नॉर्मल नॉमिनल रेट्स, तो आपका जो कॉर्पस है आपको लास्ट करती है। तो बड़े सिंपल स्ट्रेटजीज लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक यहाँ पे ये एडवाइजर की जरूरत कि आपके लिए आपको किस तरीके का फंड उस 3 बकेट में मुझे डालने चाहिए, या आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये आप कर सकते हो। इनफैक्ट देयर आर पीपल इन, आई हैव हर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स एडवाइजर्स आल्सो टॉकिंग कि आप शायद रिटायरमेंट के लिए ना 100% भी अगर इक्विटी में डालना चाहो कोई लार्ज कैप फंड में, लार्ज मिड कैप फंड में, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक बहुत बड़ा एक चीज करना होगा, वो ये कि आपको एक 2 साल का इमरजेंसी फंड पहले रखना होगा। कभी अगर बहुत मेजर डिप आए तो आप हर महीने एसडब्ल्यूपी कर रहे हो, आपको जो चाहिए, तो जब आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हो, अगर एक एसडब्ल्यूपी और दूसरे एसडब्ल्यू के बीच में मार्केट अगर घटा तो आप यहाँ से रोक लो पैसा, आप विड्रॉ मत करो, आप इमरजेंसी फंड से ले लो। क्योंकि आज वर्ल्ड में जितने गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज है वो लिक्विडिटी पंप करके जो है वो प्रोटेक्ट करेगी अपने को, तो 3-6-8 महीने जैसे कि हमने कोविड में देखा, मार्केट्स कैन कम बैक, then you can restart your SWP from there. I'm not recommending this because it cannot be recommended to anybody and everybody. There is a very specific person, once they sit with an advisor, understand temperament होना चाहिए। but मेरा ये एग्जांपल्स देने का मतलब ये था आशीष कि लोगों को इस बड़ी चैलेंज, रिटायरमेंट की जो चैलेंज है, उसकी एंजाइटी इतनी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्लान की उसके अपने एडवाइजर के साथ, तो काफी ऐसे सिंपल सी स्ट्रेटजीज हैं जिसको लेकर के आप अपनी पूंजी को बढ़ा भी सकते हो, लंबे समय तक खींच भी सकते हो, आप इनकम उससे एंजॉय भी कर सकते हो। अजीत, आपने ना बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि दिल दिमाग खोलने वाली कुछ बातें करी,
और इसी संदर्भ में जो आपने एग्जांपल दिया कि इक्विटी सारे इनोवेशन को कैप्चर करता है और कुछ एसेट क्लास नहीं करते हैं। अभी मैं हमारे ऑडियंस के लिए और खासकर राजस्थान के ऑडियंस के लिए कुछ बात बताना चाहूंगा कि जयपुर आज से 30 साल पहले वो 4 दीवारी के अंदर होता है जिसको हम पिंक सिटी कहते हैं। वो पिंक सिटी में होता था, मेजर जो बिजनेस सेंटर भी होता था, लोग भी वहीं रहते थे। फिर जयपुर जो है वहां से थोड़ा आगे निकल गया, 5-6 किलोमीटर और फैल गया। अब जयपुर जो है 15-20-25 किलोमीटर आगे फैल गया, वो अब हाई राइजिंग बिल्डिंग बन रही है जैसे कि मेट्रोपॉलिटन होता है। लेकिन आज वो जयपुर, पुराना वाला जयपुर है, वो केवल टूरिस्ट सेंटर रह गया है और वहां पे लोग रहना नहीं चाहते हैं। वहां पे दुकानों की जगह गोडाउन बन रहे हैं। मतलब वो बेसिकली आज अगर कोई बोले कि वो रियल एस्टेट जो आज से 30 साल पहले बहुत अच्छा था, आज उसकी कीमत वो रही नहीं है। इट इज ओनली बिकम अ मॉन्यूमेंटल काइंड ऑफ थिंग और टूरिज्म के लिए अच्छा रह गया, अदरवाइज वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो नहीं है। तो अगर कोई रियल एस्टेट लेके बैठ गया, बट अगर जयपुर बड़ा है, इकोनॉमी बड़ी है, तो अगर इक्विटी ने वो कैप्चर किया है पर उस रियल एस्टेट ने वो कैप्चर नहीं किया। ये बहुत ही, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे लोग रियल एस्टेट को लेकर होते हैं कि ये लेके छोड़ देता है अगले 30 साल तक। बट व्हाट यू आर सेइंग इज व्हेन द टेक्नोलॉजी चेंजेस, द टाइम चेंजेस, वो जो रेलेवेंट थी शायद वो रेलेवेंट ना रहे, पर इक्विटी उस रेलेवेंस को कैप्चर करेगी। इक्विटी उस रेलेवेंस को कैप्चर करेगी। और ऑल्टरनेट्स में जैसे कि हम प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल वगैरह जो बोलते हैं बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, वहां पर भी इक्विटी का सेम जो एक अंदर कोर फिलॉसफी है वो वहां भी कैप्चर होती है। लेकिन बाकी सब चीज जो जितने एसेट्स हैं उसमें ये इनोवेशन और ग्रोथ जो है वो उसकी प्रॉफिट्स कैप्चर उस हद तक नहीं होता जितने की इक्विटी में होता है। एक बहुत अच्छी कंपनी अगर अच्छी प्रॉफिट्स बना रही हो और बड़ी कंपनी हो तो शायद उनको अपनी डेट के लिए जब पैसा वो बोरो करना चाहते हैं तो शायद वो कम रेट पे बोरो कर सकते हैं। तो एक इम्पैक्ट है उस ग्रोथ और इनोवेशन का डेट में भी, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका सिर्फ इक्विटी। So I think so हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ अजीत सुना है आपसे, और what you call the words of wisdom that we have heard from you. So I'm sure they would like to know about your journey, personal life. So Ajit, if you can tell us about how you come such a long way in your career, what's been your journey like? Well, Ashish, I actually never thought that I would end up in the financial industry or become a CEO. I think coming from a very middle class family, born and brought up in Bombay, my parents are from Kerala. They had come. My father was working in Air India. तो हम वही लोकल स्कूल में जाके पढ़ाई करके जो फ्रेंड्स ने किया वही 12th के बाद हम भी कॉमर्स में गए। मेरा I actually wanted to be in the army. That was my big when I was a child I wanted to be in the army, but my parents were not for it. We didn't have a background. तो decisions ऐसे बने कि नहीं भाई आपके जो cousins हैं भाई वो कॉमर्स कर रहे हैं, आप भी कॉमर्स ही कर लो। तो वहाँ जा करके then I did my MBA from MMS from Mumbai. And I started my journey with Crompton Greaves lighting, selling bulbs and tubes. I wanted to be in sales. Okay. I wanted to be in sales, and that was a marketing job. And within a year, one of my seniors from Crompton, he had moved to this new company called Hutchison Max Telecom, which was selling mobile phones, which is today's Vodafone. Okay. So I was one of the first few people recruited for sales in mobile phones in India. Okay. So जब वो 16 rupees 80 पैसे वगैरह होता था incoming outgoing. So I learned selling a concept. Right. तो वहां से एक शायद एक इंटरेस्ट ये कहा जो मेरा हुआ कि कॉन्सेप्ट सेलिंग जो होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी रिवॉर्डिंग आल्सो एज अ पर्सन and I didn't realize it then, by the way, Ashish. I left Vodafone or whatever Hutchison Max Telecom at that time to join Standard Chartered Bank. As a priority banker, I was selling, that time mutual funds were anything, this is I'm talking 97, right. And we had deposits and loans and things like that. बहुत बोरिंग लगा मुझे कि मैं अगर रहूं ना रहूं तो बैंक तो चले, मेरा कोई उसमें रीजन नहीं। और मोबाइल फोन्स बेचते वक्त ऐसा लग रहा था कि यार मैं जब बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं तो वो मेरी बातें सुनती हैं कि इसको क्या करना है कैसे करना है, तो आई फेल्ट मोर हैप्पियर डूइंग दैट। And that is when I realized that Standard Chartered Bank at that time had started mutual funds. I began to see ये भी एक कॉन्सेप्ट नया है और ये वर्ल्ड में बड़ा सा एक इंडस्ट्री है, तो मैं शायद इसकी जो जर्नी है इसकी स्टार्टिंग से अगर मैं जर्नी में रहूं तो शायद मैं ग्रो कर पाऊंगा। और फिर से कॉन्सेप्ट सेलिंग में आया कि म्यूचुअल फंड्स हैं, मार्केट से कैसे लिंक होता है, क्या होता है, तो ये कर कराते ये जर्नी आफ्टर 2000 when I joined DSP Merrill Lynch at that time, which became DSP BlackRock, now is DSP, very respected house. वहाँ I was there 16 years, and then in between I was with Tata Mutual Fund, and then I came to PGIM. So I've been here now. I don't know how time has passed, so fast. But I have been here now almost 7 years, and I became. So you're doing a great job, Ajit. You're doing an amazingly great job, and a very respected, person you are in the industry.
बट अजीत आपने रिटायरमेंट के बारे में बात कही तो आई एम श्योर ऑडियंस ये पूछना चाहेंगे इफ यू एवर वर टू हैंग अप योर बूट्स what is that innovative thing or what is the concept thing that you would like to do? Oh, there are so many ideas that I have. In fact, I should tell you, Ashish, that Pigeon has published a report called the 50 Gigs Report. Okay. So it's a report that we have actually put on our website. 50 different hobbies that you can monetize. आप कहाँ से सीख सकते हो, कितना खर्चा हो सकता है, आप कितना कमा सकते हो उससे. So we put it up on our website as a free resource. We've spread it and you will have it as well. Please share it with everybody who wish to. And this is exactly with this concept, to say that, take your hobbies and do. I sketch a lot. I also sing and I record. Oh, wow. My wife's a coach, an executive coach, Okay. and I've always been keen on learning coaching. It's a very lucrative business, so to speak. If you were to get certified as a coach, to become a master coach is not easy. She's a master coach, Wow. so I'm way behind her in that. But I could join her to do that. I do think that I've bought a small plot of land where I would love to get my hands dirty and do something there, and in fact even make some money out of it, thinking about the different things that I can grow and do something. Maybe So you I do have some like, concept selling in agriculture also. yeah, so Yeah. Permaculture, organic, flowers. There are many things that one can do today, and it's reasonably available all across. So and so it's a decent sized piece of land. So I'm thinking along with friends to do something there as well. So in fact, I don't think that whenever I hang up my boots, and I'll be doing one thing. I think I'll be doing 2 or 3 things. And fortunately, I have whatever I've told you, I have had a financial advisor for the last more than 15 years now. Okay. All of my investments have, like I said, never invested in equity too much, maybe a stock here or there, but which I've sold. It's all in mutual funds. It's all planned in terms of my daughter's education, my son's education, our retirement. And, we have a lady who's been working with us full time as our maid, taking care of the kids for more than 20 years. We have a plan for her pension also. So and nice. everything. So and nice. my advisor has, built that financial plan. I have a very good return on my portfolio. I just review it once in 6 months. That's So amazing. there's no stress as far That's as that is amazing. concerned. I'm following my own advice, so to speak. Wow. That's amazing to I see. need to do more things. No, this is really, really inspiring. It's not only about professional life, you have actually touched upon how to live a very graceful personal life. Whatever you have just spoken, that is really, really inspiring. So, we see a lot of books and you have actually mentioned many authors in between. So, कोई 2 बुक जो आप एक निवेशक को बताना चाहेंगे कि ये शायद उनको समझ में आनी चाहिए, उनकी कई गलतियां वो सुधार सकते हैं. So, what those 2 books would be like? I would say that one of the books that I read maybe a year and a half back, which I found very useful, was a book called Laws of Wealth, by Daniel Crosby as the author. And a very good book where what he has done is that he has taken every concept that we know about creating wealth and he has analyzed it to say, इसमें scientific evidence किस हद तक है और latest research क्या कहती है उस चीज के बारे में. So I think those are the kind of things that is there. So it gives you a very good sense of, and very simple stories and things that he's written, and gives a lot of researched examples. When we think about returns, kaisa hota hai, kya hota hai, what are the mistakes people make. So I think Daniel Crosby's Laws of Wealth is a good book. Morgan Housel is a favorite person that I read quite a lot. He has obviously written The Psychology of Money earlier, but I recently finished his latest book called Same as Ever. And I think that's an easy read for people. It gives you a lot of understanding Both the books are about it. Both the books are easy. I would recommend any one of these books. Amazing. Thank you so much, Ajit. And now with that, I'd like to end this conversation with some rapid fire stuff. Sure. And and I'll not hold you responsible. There is no accountability. It's just that I want you to have an absolute instinct, Ajit special here now. Okay, so I'll like, and let it be quite quick. And again, I said no holding. That's why. So now, Ajit, next 5 years, India or US? India. Index or active? Active. News or books? Books. Today, India is a $3.5 trillion. 2030, India at 7 trillion. Below that, more that. Higher. These predictions don't work. But that's okay. It's optimistic. I'm optimistic. Yeah. I'm optimistic. So, next 10 years, FD rates in India. 10 years. My sense is that it should be, say, 5% at the end of that 10-year period, probably.
Because you have to remember that one of the things which people don't realize has changed is that our central bank, our RBI, has a very clear mandate. Inflation should be controlled at 4% plus minus 2. CPI inflation. Right. जो आज हमारे नॉर्मल लोगों को जो इम्पैक्ट होता है CPI इन्फ्लेशन जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उनका बिल्कुल ये रूल है, गवर्नमेंट का रूल है आरबीआई के लिए कि आपको कंट्रोल करना है 4% प्लस माइनस 2 के रेंज में. जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इट इज कनेक्टेड टू दिस इन्फ्लेशन. सो इफ वी गॉट अ वेरी गुड सेंट्रल बैंक, वेरी गुड पॉलिसीज, इफ यू आर एबल टू कंट्रोल इट से टू 4% और 5%, आप शायद 100 बेसिस पॉइंट उससे ज्यादा गिर के चलिए डिपॉजिट्स के लिए, तो आई थिंक इट विल बी अबाउट very rational answer, I think so. So you answered it, but I still like to like DIY or advice portfolio. Advice is something that I tell anybody, whether a stranger, friend, or family. Advice. Get advice. GSEC funds or FDs for next 3 years? Next 3 years, GSEC undoubtedly. If we assume that rates may slowly come off, then you have the ability today to get much higher accruals and capital gains as well. I think so. We had an amazing session, and I'm sure the audience, would be probably thrilled listening to Ajit. And Ajit, thank you so much for such an, I would say, eye-opening for me as well. Even though I had a lot of chat with you, but every time that I have an interaction, I learn a lot. And more importantly, I would say it was quite entertaining also. Listening to you and a different side of perspective, Ajit. So thank you so much, Ajit, for giving a valuable lesson and amazing. Thank you so much. It's my pleasure always, Ashish, to be with you. I'm a fan of you as much as you're a fan of me. I've seen you all through your professional career, most of it in the last decade or so, and I've always been, very happy to see the very individual opinion that you hold for yourself on many things. I think it is required of individuals to have that individual opinion rather than go with the herd. That is what I feel is your biggest quality, and I'm always happy to interact with you. Thank you so much, Ajit, for your kind words. Thank you.